Good morning, 11th standard. Now, today we will start the another one lecture of equilibrium chapter. In the previous one lecture, we have discussed about that what is a law of chemical equilibrium, what is equilibrium constant, and what is Kp and Kc means the types of equilibrium constant. और हम ये कह सकते हैं कि equilibrium constant at constant concentration and equilibrium constant at constant pressure. ठीक है बच्चे, we also revised or we also discussed in my previous one lecture about the relationship in between Kp and Kc, जहां पर Kp is equilibrium constant at constant pressure है और Kc is equilibrium constant at constant pressure है. ठीक है, so Kp अब थोड़ा सा याद दिला देती हूँ. Kp is equals to Kc into R into T raised to the power RT raised to the power delta N. Now where delta N was the number change in number of moles. ठीक है बच्चे. So number of moles. So number of moles, change in number of moles means the number of moles of product minus number of moles of reactant. So उसकी हेल्प से हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी वहां पर और हमने देखा था कि वो कैसे आपका Kp या Kc आप कैलकुलेट कर सकते हो इफ RT आर द कांस्टेंट वैल्यू तो आपको गिवन हो. और हमने expression for Kp and Kc also we learned. Now today I come up with the another one very important topic of equilibrium, and we can say chemical equilibrium, and that is types of chemical equilibria. कि ये कितने types का होता है. First आज हम ये डिस्कस करेंगे कि types of chemical equilibria क्या होता है, कौन कौन सी होती हैं. The another one that is application of equilibrium constant. That means in daily life what are the uses of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम कहाँ यूज कर सकते हैं उसको, कहाँ अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के की वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं और उससे कुछ और नई चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि मैं बताऊं कि कोई रिएक्शन if it occurs in equilibrium then what will be the direction, predict the direction, एक्सटेंट किस एक्सटेंट तक और किस डायरेक्शन में वो मूव करेगी, फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी. सो दैट वी कैन डू एंड एल्स आल्सो वी विल लर्न कि हमारी एप्लीकेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या होती हैं. So that also we will learn, but first of all we are going to see that what is basically how many types of chemical equilibria. So under the types of chemical equilibria we can divide or categorize a chemical equilibria into phases or into different types. One is the homogeneous equilibrium, another one is known as the heterogeneous equilibrium. So beta homogeneous जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, homo means same, एक ही. तो ऐसा equilibrium which exist in the equilibrium in which or the reaction, equilibrium reaction in which all the reactants as well as the product माने जितनी भी उस reaction के अंदर species present हैं, so all those species, all those reactant and product at the time of equilibrium should present in the same one phase. वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, either that should be present in the gaseous or that should be present in the liquid one phase. अब आप बोलेंगे मैम solid phase में क्यों नहीं हो सकता, तो so obviously बेटा as I have already when we were discussing about the Kp and Kc हम किसी का Kp कितना होगा या Kc कितना होगा एक्सप्रेशन लिखते हुए दिखा रहे थे. तो जस्ट मैंने वहां पे कहा था आपको कि नोट डाउन करिए कि सॉलिड स्टेट में अगर कोई आपका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है either that is a reactant or that is a product. So that's
concentration, that's active mass, should be taken as 1 unity. तो वो unity हो जाएगा, तो उसका यहाँ पर वैल्यू मतलब कैलकुलेशन में नहीं आएगा. So that's why हम क्या कहते हैं, that homogeneous equilibria is the equilibrium when in an equilibrium reaction all reactants and products are in same phase. Means either that can be gas or that can be liquid. तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे पूरी रिएक्शन में जितने भी स्पीसीज हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज एज वेल एज प्रोडक्ट स्पीसीज, दैट शुड प्रेजेंट इन द सेम वन phases. जैसे फॉर एग्जांपल H2 plus I2 gives 2HI, so gaseous है सारे के सारे. H2 is gas, I2 is gas, HI is a gas. N2 nitrogen gas when react with oxygen gas gives nitric oxide. This reaction also exists in the equilibrium reaction, and it is also existing all these three species present in the gaseous one phase. Similarly इस वाले के अंदर सारे के सारे क्या है, लिक्विड में है. that acetic acid, ethanol, ethanoic acid you can say, ethanol gives ester, ठीक है, plus water. So all the four species which is present or which participate in this reaction, that is present in the liquid one. So हमने क्या कहा कि आपका homogeneous reactions वो हैं जो कि एक ही फेज में एग्जिस्ट करती हैं. जबकि अगर मैं बात करती हूँ heterogeneous reactions की, तो heterogeneous reactions are those one equilibrium reactions, या when in an equilibrium reactions the species which participate in the reaction, whether that is of a product side or whether that is of a reactant side, two or more than two species should be present in different phases. ठीक है, तो उनके phases अलग होने चाहिए, चाहे वो solid liquid है, liquid gas है, या गैस और सॉलिड है, बट दैट शुड बी डिफरेंट. सो प्लीज इन डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लेना, पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा योर रजिस्टर्स. दीज आर द पॉइंट्स. हर बार आपको अलग से असाइनमेंट मतलब नहीं मिलती है, सो दैट डजंट मीन कि आप कुछ नोट डाउन नहीं करेंगे. So just note down the definitions as well as the example of these two types of equilibria, chemical equilibria, that when in an equilibrium reaction, the reactants and products are in different phase, that is two or more than two phases. For example, अब यहाँ पे देखो calcium carbonate gives calcium oxide plus carbon dioxide. Calcium carbonate and calcium oxide are existing in the solid state, whereas CO2 is existing in the gaseous state. So दो different phases हो गए, solid and gaseous phase present in this reaction. Similarly here, iron when reacts with water gives iron oxide and hydrogen gas. Now iron oxide is a solid and hydrogen is a gaseous form, and here also water is a liquid and iron is a what? It is a solid. So यहाँ पर भी क्या है, तीनों states present है, so that will be also comes under the heterogeneous equilibrium. ये बेटा बहुत सिंपल है कैटेगराइज करना, आइडेंटिफाई करना. अगर रिएक्शन पूरी की पूरी एक ही फेज में चल रही है, एक ही स्टेट्स है, तो वो होमो होगी, होमोजीनस इक्विलिब्रिया होगा. अगर वो डिफरेंट उसमें है, आपके क्या कहते हैं हम, अगर डिफरेंट फेजेस में है तो वो क्या बन जाएगी, हेटेरोजीनस इक्विलिब्रिया. जैसे कि कार्बन सॉलिड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ये दोनों गैसियस हैं, ये भी वाटर भी गैसियस है, लेकिन वन रिएक्टेंट is present in this reaction or in this equilibrium reaction act as present in the form of solid. So this also comes under heterogeneous equilibria. एक दो होने चाहिए, दो कोई भी दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेजेस में हैं तो वो हेटेरोजीनस होगी, और अगर सारे के सारे एक ही फेज में हैं तो वो तभी सिर्फ होमोजीनस हो सकती है. ओके, अगर मुझे इसका केसी निकालना है तो मैं क्या कहूंगी, दैट HI square or concentration of H2 into concentration of I2, यही होगा. So this will be considered as Kc for this reaction, और Kp भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे, तो गैसियस है तो सारे का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा. So Kp will be also simply आपको यहाँ पे अगर हमें Kp निकालना है तो हम निकालेंगे
partial pressure of HI squared upon partial pressure of H2 into partial pressure of I2. बेटा यही बनेगा. So this will be considered as Kp value and this will be considered as Kc value. So please इसे नोट डाउन कर लीजिए. वीडियो पॉज करेंगे और इसको पूरे को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे. So beta, we were talking about the types of equilibrium. After that, we are moving to the applications of equilibrium constant. क्या क्या use हो सकता है equilibrium constant का? So the first application of equilibrium constant is predicting the extent of reaction. कितना extent तक forward जा सकता है या backward आ सकता है या equilibrium में reaction exist कर सकती है. So first हम Kc की वैल्यू मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ये डिसाइड कर सकते हैं दैट वेदर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी larger than comparatively to the concentration of reactant in a particular reaction या वो रिएक्शन में आपकी वो इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल होगी या वो फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी. ठीक है. सो पहला ये कि इफ देयर इज लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस इफ इट इज मोर देन 10 raised to the power 3000, अगर वो आपका उससे भी ज्यादा की वैल्यू है, 1000 से ज्यादा की किसी की वैल्यू है, then reaction will proceed in a forward direction. reaction आपकी कहाँ proceed करेगी, forward direction में reaction proceed करती है. And in this one we generally consider that the concentration of product is usually more than the concentration of reactant. ठीक है. And it is almost go to extent of completion. ये reaction forward direction में जाती है और extent of completion तक होती है. ठीक. For example, hydrogen gas when react with bromine gas forms a hydrogen bromide gas. Hydrogen gas when reacts with chlorine gas at 300 Kelvin forms hydrogen chloride gas. So both of these Kc value is 1. HBr में formation of HBr के दौरान Kc equilibrium constant value is 5.4 into 10 raised to the power 18 है. Whereas for HCl it is Kc is equals to 4 into 10 raised to the power 31. In both the cases, as we have seen, the value is more than larger than 10 raised to the power 3, and that's why both of these reactions almost go to completion, extent of completion. ठीक है. तो ये लार्जर वैल्यू है. Whereas अगर हम बात करते हैं कि if the value of Kc is intermediate means if it lies in between 10 minus 3, 10 raised to the power minus 3 to 10 raised to the power 3, यहाँ तक अगर लाई करती है, then it is concentration of reactant is comparatively comparable to concentration of product. Almost equivalent होते हैं, थोड़ा बहुत approximate differ करेगा. ठीक है. दोनों यूज होंगे रिएक्शन मिक्सचर में. फॉर एग्जाम्पल ये आर कंपेरेबल. Fe3 positive, it's for ions in aqueous. SCN thiocyanide in aqueous gives FeSCN2 positive. Again a complex ion gives करता है where Kc value Kc is equals to 138. And what does it mean? The value lies in between 10 raised to the power minus 3 to 10 raised to the power 3. ठीक है. And for that one means दोनों ही reaction mixture में दोनों की concentration reactant ions as well as the product ion will be comparable, almost equal होगा. ठीक है. Whereas in the another one case, when value is of Kc is less than 10 raised to the power minus 3, very low value of Kc, then obviously reaction proceed toward backward. उसमें आपके reactant ज्यादा होते हैं, concentration of reactant is higher than concentration of product. ठीक है. And reaction is backward. बता चुकी, concentration of reactant is larger than product, and that's why we can say that that is means very this reactions goes to very small extent to the forward direction.
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम एक्सटेंट में जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बनता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दें तो इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड. Yes, it forms nitric oxide, but to a very small extent as comparatively to the concentration of a reactant. Its concentration is very, very small. Similarly, water at 500 Kelvin when dissociate into hydrogen gas and oxygen gas. So in this one also, that's why this is the reason कि इसकी Kc की वैल्यू बहुत कम होती है और it's not easy to release oxygen from water. तो water से हमें oxygen easily नहीं मिलता. As you can see, Kc value 4.8 into 10 की minus 31 है. So it is below minus 3. And here it is also 4.1 into 10 raised to the power minus 48, which is less than minus 3. So this is the first application that it predict the direction, it predict the extent of reaction कि कितने. तो नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ा. नाउ वी मूव टू द प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि किस डायरेक्शन में जाएगी वो प्रिडिक्ट करना. तो सपोज देयर इज अ रिएक्शन बेटा, A moles of capital A plus B moles of capital B gives X moles of capital X and Y moles of capital Y. So इसके लिए किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, दोबारा बोल रही हूं प्लीज ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन का अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी और कॉन्सेंट्रेशन पर क्या निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, रेशो निकालते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, बट नॉट एट इक्विलिब्रियम, not at equilibrium of reaction except when the concentration of all reactant and all product are present in equilibrium, except that at any condition, any state, अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, कांस्टेंट निकालते हैं, सो दैट विल बी नोन एज अ कॉन्सेंट्रेशन quotient or reaction quotient, जिसको we are expressing in the form of QC or Q. So QC or Q is nothing but that is what, that is the basically the any chemical concentration ratio, क्या कहेंगे, concentration ratio at any stage except equilibrium, except इक्विलिब्रियम ऑफ अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन तो हो रहा है लेकिन हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इक्विलिब्रियम पर नहीं निकाल रहे. सो दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट और रिएक्शन कोशेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय QC और Q. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कंपैरिजन अगर हम करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट का, देन वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. सो कैसे, that is Q क्या हो जाएगा बेटा, obviously the concentration of product raised to the power is stoichiometric coefficient upon concentration product of concentration of reactant raised to the power, there is stoichiometric coefficient. So here Q is equals to X raised to the power X, Y raised to the power Y, A raised to the power A into B raised to the power B. ये रेशो बन गई ना. अब आ जाते हैं किसी रिएक्शन में जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसने इक्विलिब्रियम अटेन किया है. इफ Q इज इक्वल्स टू Kc, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है, देन रिएक्शन इज नोन इन एग्जिस्टिंग इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. ध्यान रहेगा कि रिएक्शन तब कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट में. इफ Q concentration quotient is more than Kc, रिएक्शन में इस Q की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो किस तरफ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में. ऑब्वियसली बेटा देखो प्रोडक्ट की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जाती है तो मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली एक या तो रिएक्टिंग स्पीसीज या प्रोडक्ट स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सेट करते हैं. जिसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में कम है वो
बढ़ने लग जाएगी और दूसरे की कम होने लग जाएगी। ठीक है, पहले ये था, अब धीरे धीरे अगर ये है तो इसकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी और इसकी कम होती चली जाएगी। फाइन। सो सिमिलरली हियर आल्सो इट हैपेंस दैट Q टेंड टू डिक्रीज, Q कम होने लगेगा क्योंकि Kc से ज्यादा है। डिक्रीज करने के लिए, इक्वल बनने के लिए Kc के क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने लग जाएगी, इसकी कम होने लग जाएगी। सो रिएक्शन विल एग्जिस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज इफ Q इज ग्रेटर देन Kc वैल्यू, अगर वो लार्जर वैल्यू में है तो इसका मतलब Q टेंड टू इंक्रीज। अब Q क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और उसके लिए इंक्रीज करेगा तो मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अब ज्यादा होनी चाहिए। सो द रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो सिंपल वन है, सीधा सीधा। अगर नेग्लिजिबल केसी की वैल्यू है तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, वो बैकवर्ड में ही रहेगी, बहुत थोड़े एक्सटेंट तक अगर आपका प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, अदरवाइज रिएक्शन हार्डली प्रोसीड। 10 की -3 टू 10⁻³ के बीच में अगर वैल्यू आती है तो concentration of reactant will be existing will be the equal to the concentration of product in equilibrium state, means reaction equilibrium में आएगी अगर इस केस में है, आ रही है। और अगर इससे ज्यादा हो गई तो इट मीन्स कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है एंड फॉर एक्सट्रीमली लार्ज Kc की वैल्यू। ओके बेटा, तो अब हम तीसरी एप्लीकेशन इसकी कर रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी करना है तो उसे ध्यान से समझिए। पहले मैंने सारी स्टेप्स लिख दी हैं, फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ और मेरे को जीकेसी भी कराना है। उसके बाद अगर होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेसिस पे। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। फॉर दैट पहली स्टेप, किसी भी रिएक्शन में उसकी इक्वेशन लिखिए और उसे बैलेंस कीजिए। ठीक है, so first write down the balanced chemical equation which is given or problem which is given in your problem. Then second one, assume X as amount of reactant of any species or amount of product which is to be formed. This is up to you कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, तो उसके अपोजिट वाले को जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन या जिसका भी वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है उसके अपोजिट वाले को आप क्या ले लेंगे, एक्स एज ए अज्यूम कर लेंगे। थर्ड वन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसके बाद हर एक की इक्विलिब्रियम पर, पहली हमने करी बैलेंस इक्वेशन लिखी, दूसरा हमने करा कि हमने एक्स कंसीडर किया किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को। थर्ड वन, सबकी सबकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे लिखी, पहले इनिशियल और फिर एट इक्विलिब्रियम लिखे, फिर राइट केपी और केसी, फिर उसका अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें केपी कैलकुलेट करना है या केसी, जो भी हमें प्रॉब्लम्स में दिया होगा यूनिट से पता चल जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो आप केसी कैलकुलेट कीजिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन जो आपको प्रॉब्लम में गिवन है वो एटमॉस्फेयर में गिवन है तो आप केपी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन माने केपी या केसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए वहां पे जो भी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी। ठीक है, देन चेक रिजल्ट बाय सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज, और उसके बाद अपने रिजल्ट को चेक कीजिए। तो फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि वी हैव अ वन इक्वेशन दैट इज a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। मैंने किसी भी एक प्रॉब्लम का वो करा और मैंने ये कहा कि इन केस अगर ये इस तरीके की है, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट इज 2a plus b gives c plus 2d, that is the balanced equation। अब मैं कहती हूँ कि this one is a mole initial concentration, मैंने कहा था ना सबसे पहले जो गिवन है आपको वो लिखिए। so suppose initial concentration of a is a mole per liter and it is b mole per liter। ये सेकेंड स्टेप जो मुझे दिया हुआ है वो लिखना है। थर्ड स्टेप मेरी आ जाती है कि मुझे फाइंड आउट करना है एट इक्विलिब्रियम कितना कितना है। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, एट इक्विलिब्रियम कितना है, तो मैं वो लिखूंगी
इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी A मोल पर लीटर, इसकी थी B मोल पर लीटर। ऑब्वियसली इसकी 0 होगी इनिशियली और इसकी भी 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो बने नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 0 0 गई। नेक्स्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम पर इन केस। अब सपोज करते हैं, क्या करना है, अब यहाँ से सपोज का केस आया, तो सपोज इसकी जो है आपकी कॉन्सेंट्रेशन x मोल क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। दोबारा बोल रही हूँ, क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। तो A मोल थी, उसमें से ये x कंज्यूम हो गया, यही बचेगी A माइनस एक्स मोल पर लीटर बच जाएगी। और इसकी, क्योंकि बेटा देखो इसमें 2 मोल्स थे और इसकी x मोल कंज्यूम हुई, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी B माइनस एक्स बाय 2 मोल। भाई अपॉन करोगे ना, या तो इसको x लोगे तो यहाँ पे 2x कर दो, या फिर इसको x बाय 2 हाफ कर दोगे, क्योंकि ये तो हाफ लगेगा, ये 1 मोल में प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यही लगेगी। अब ये मेरा, अगर ये x मोल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी x मोल बन रही है, ये 2 मोल्स है यहाँ पर भी, तो ये क्या हुई, ये x मोल पर लीटर बनी मेरी। भाई ध्यान से, यही न्यूमेरिकल्स में आएगा। ये कितनी बन गई अब, x मोल। अगर ये x मोल बन रहा है तो ये कितना बनेगा, x बाय 2 मोल पर लीटर, यही बनेगा, ये बनेगा x बाय, क्योंकि बेटा देखो यहाँ 2 मोल्स है और यहाँ पे 1 मोल है। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी तो डिपेंड करते हैं ना, तो ये बनेगा x मोल, अगर तो ये बन जाएगा x बाय 2। ओके, तो दिस वन इज टू बी फॉर्म। इनमें से माइनस हो जाएगी क्योंकि रिएक्टेंट की इतनी यूज हो गई, और कहाँ है, कहाँ पे न्यू क्या बना, प्रोडक्ट, तो ये हमारे न्यू बन गए। इट्स ओके, सो दैट वी विल डू। Now after that it is very simple, हम Kc लेंगे क्योंकि मोल पर लीटर के अंदर है, तो Kc क्या है, Kc is active mass of C into active mass of D raised to the power square, क्योंकि 2 है, अपॉन active mass of A into active mass of B। A का भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर, बिकॉज इट इज कोफिशिएंट इज 2 गिवन। अब वैल्यूज लगा दो, यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दो जितनी जितनी है, तो C का है x बाय 2 इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स, ये वाली लोगे। ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम का केसी निकाल रहे हो, केसी निकाल रहे हो मीन्स केसी इज concentration of product by concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient at equilibrium। तो equilibrium पे जो उनकी concentration है, अगली स्टेप वो फाइंड आउट करेंगे। तो A माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय B माइनस एक्स बाय 2 और A माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 2, तो इसका 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्लियर, तो दैट वी आर गोइंग टू डू इट। इसी तरीके से बहुत इजी है ये, हमारी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके साथ हो जाती हैं। इवन दो अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन G एंड योर Kc। ठीक है, तो वो एक हम कर लेते हैं आज के लिए। Okay, beta. So, हमने till now we have discussed about the application of equilibrium constant, and now we are going to discuss about the your relationship in between equilibrium constant, reaction quotient, and Gibbs energy। ठीक है, तो इसमें बच्चे हमारा जो Gibbs energy आता है, ठीक है बेटा, तो हमने बात करी रिलेशनशिप इन बिटवीन योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड Gibbs energy. So that we have already discussed in thermodynamics, this equation, that change in Gibbs energy or of a reaction which is equals to change in standard Gibbs energy plus RT natural log of Q. Now natural log of Q is reaction quotient का natural log. So at equilibrium, because we know that when delta G is equals to negative, तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है, ये तो हमें सबको पता है। ठीक है,
spontaneous. If delta G is equals to positive, so reaction is equals to non-spontaneous. और अगर हम बात करते हैं कि डेल्टा जी अगर 0 होता है तो आपकी रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. तो रिएक्शन कहाँ होती है? इक्विलिब्रियम में. मींस नो फ्री एनर्जी, नो एनर्जी इज प्रोवाइड टू ड्राइव द रिएक्शन. कोई फ्री एनर्जी उसमें प्रेजेंट नहीं होती. सो अगर मैं बात करती हूँ एट इक्विलिब्रियम की, तो व्हेन डेल्टा जी विल बी इन दैट केस इज इक्वल्स टू 0, एंड ऑल ऑफ अस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि Q जो होता है इक्विलिब्रियम में, Q इज इक्वल्स टू Kc, means reaction quotient is equals to equilibrium constant. So in that one case delta Gr is equals to, ये आपका delta G naught इसी इक्वेशन पे रखो, RT natural log of Kc हो जाएगा instead of Q, and delta G की वैल्यू कितनी हो जाएगी? At equilibrium we are just doing it, so it will be 0 is equals to delta G naught plus RT natural log of Kc. तो यहां से मैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, बेटा इसको इधर ले जाएंगे तो इट बिकम्स माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी, फ्रॉम वेयर नेचुरल लॉग के सी की आप वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी. सो दिस इज द बेसिकली अ रिलेशनशिप इन बिटवीन क्यू, के एंड डेल्टा जी नॉट. ठीक है बच्चे? सो दिस वी हैव टू डू in this. And with that, if there are the questions, numericals given in the your back exercise that you have to do, as well as you have to prepare the notes till this, and we will meet till the time. Bye to everyone, and we will meet with our next video. Thank you to all of you.